everyone else. I hope आप लोग मुझे I forgive aren't करके perfect forget at करके आगे चल either. सकते हैं. I'm not perfect either. Perfect either. Nobody is. अब आप लोगों को किधर तवज्जो करनी है? Nobody except Allah subhanahu wa ta'ala. For four objects, each have two forces acting on them. Which object is in equilibrium? कौन सा equilibrium में है? A. Why? Ball It of could also mass be B. M. It cannot be B because उसमें यहाँ pivot बनेगा and it will rotate. But Line of this action भी बराबर होने they're चाहिए. on opposite and they have the same distance, including इक्विलिब्रियम की दो the कंडीशंस same. होती हैं बेटे. ये भी क्लॉकवाइज है पुत्र, ये भी क्लॉकवाइज है पुत्र. दोनों एक ही तरफ है, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क नहीं है. A ball of mass m falls vertically and hits a hard surface. Its speed on hitting the surface is v1. It rebounds vertically upwards with speed v2. What is the change in momentum of the ball? Change in momentum निकालना है. Change in momentum कैसे निकालते हैं? ऐसे. क्या हुआ? Study. मैं भी देखता तो ऐसे ही होना था, लेकिन चलो देखें कहाँ. There are two kinds of people. One kind and the rest of the world. तीन बच्चे जो है ना, ये भी इंटरेस्टेड नहीं है क्लास में. तो आई वुड रिक्वेस्ट उन दो तीन बच्चों से, प्लीज either step out of the class or bring your interest back into the class. I am waiting for you to leave the class either or look at the board. So nobody is now leaving the class. That means you are telling me now you have full attention towards the board. If I find you paying attention elsewhere, I will be very mad at you. Okay? Thank you. Question number 3. A stone is dropped from a tall tower, all the distance of 50 meters. I have to underline this. Put D here because it's distance. The ground, the stone has a mass of m. At which speed does the stone hit? Speed. V क्या है? हाँ जी. कहाँ से ये आ सकता है? ये तो हाइट बता रहा है. मैस है. ये डिस्टेंस उसने फॉल किया. आई कुड राइदर कॉल इट डी और एच. ये क्या करूंगा अब मैं इसमें? Oh yes, there was this concept of energies. There was a concept of. तो यहाँ पर हाइट पर जितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है, उतनी यहाँ बेस पर काइनेटिक एनर्जी होती है. Uh, um, सो मैं don't हाइट tell पर me. पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकता हूँ. कैसे? आई नो पोटेंशियल एनर्जी एट द हाइट वुड बी एम जी एच. And I know the kinetic energy at the bottom, which would be equal to that potential energy, would be 1 over 2 mv square. I can put these two equal to each other, which is mgh equals to half mv square. So mgh at the top and half mv square at the bottom. Sir, I why can did you cancel write out the V2? m's. Why I did can you cancel write out the. V2? एक मिनट बेटे, v स्क्वायर लिखना था. अच्छा जी ठीक है, तो स्क्वायर ही अपनी तरफ से लिखा था. So I can cancel out the m's and I could say that 2gh is equals to v square. And I can simply put the values there. What are the values that I need to put? Since I already have four options, I just need an estimated value. Whichever is the closer one will be the actual value. It's 2 into 10 into 50, because that's the height here, is equals to what was the value of v? I need to find that value. So it's 1000. 10 ले लिया ना जी की वैल्यू. जी की वैल्यू क्या ले ली? So 9.8 ले लेंगे. मैं तो I'm just trying to get an estimated value जो भी इसके करीब हुई. So in fact I don't need to take 10. Sorry. Why? Because physics में तो calculator allowed है. So I simply need to
You put this into a calculator. What is the value here? 980? हाँ 980 हाँ will be दोबारा the कर लो चलो. answer to the inside of the underwood when you वाकई when it's अंडरवुड लिया आपने inside. उसका? When you put the underwood, यार it's बहुत आई approximately 31 meter per स्टेप second. बाय स्टेप चल रही हूँ मैं. क्वेश्चन नंबर 4. Along Sir, did you even circle the answer? al सॉरी बेटे, वो आपकी ना आवाज कटती रही है तो मुझे बिल्कुल नहीं सुनाई दिया. The answer, it's 31 I, meter per second. I want. Oh. Sir, I just had to. मैं बेटे आपकी बिल्कुल ही आवाज नहीं आ रही. You're, so that's why I turned off my AirPods. अब आप जब भी कुछ सवाल पूछोगी मेरी पूरी क्लास सुनेगी, ठीक है? ओके. आपने लेकिन सवाल Is there a question that you want to ask? No, you didn't बेटा circle the answer. I was yes or no तो आ asking. जाएगा बेटे जल्दी से. बस ठीक है. If there is no question, did you understand what I've just yes, explained? कि I कैसे want to करना है? ask something. Yes, because I had the same answer and the same technique. I hope आपने yes करा. Good. आगे चलते नहीं. A long tube contains oil. A small ball is held at rest at the surface of the oil. यहाँ पर हमने बॉल को रखा है. At time t is equal to 0. The ball is released, begins to fall. वो नीचे की तरफ fall करेगी of course. The bass ball begins to fall through the oil. It accelerates. Accelerate करता है. Define acceleration. What is acceleration? The rate Rate of of change speed, in. rate of change in velocity. जी बेटे सबको अल्हम्दुलिल्लाह की बात पता लगी. I wrote the change in velocity with respect of time. फिर आपने रेट वर्ड तो नहीं लिखा पीछे? No. हाँ फिर भी ठीक है. The mass of the ball is this. अगर the resultant for mass के लिए अंडरलाइन करेंगे, हम लिखेंगे कैलकुलेट द. वो आपने मीम देखी? वो एक आदमी अपने बेटे को कहता है यार आज मैं तुझसे बहुत कुछ हूँ, जो भी मांगना है मांग लो, मैं ऐसे ऐसे करूंगा, जो कहोगे ऐसे ऐसे करूंगा. बेटा आता है आगे कहता है अब्बा 1 लाख रुपया देते हैं. कहता है ये 1 लाख रुपया. कहता है मैंने कहा था मैं ऐसे करूंगा, ऐसे ऐसे करूंगा. नहीं ये सीन है नहीं. आपने वो देखा है कर. आपने वो देखा वो अब्बा बेटे का चेक कर रहा होता है, चेकअप कर रहा होता है बीपी वगैरह. बेटे को कहता करो. बेटा कहता कहता हूँ बाँ कर. कहता बाँ जोर से थप्पड़ मारता. कहता बाँ मीन्स बाजू आगे करो. अब सी दैट नो. खैर. Calculate the resultant force acting on the ball when it is accelerating downwards at. अब वो नीचे आ रही है. Resultant force बतानी है आपने. How do you get the resultant force? F net is resultant force. It is equals to a mass into acceleration. You need to find the resultant force. You just plug in the values. 0.0075 times 2.8. What is the answer? 0.02. लिखा 0. 0.021 Newton. ये कह रहा है 0.296 है. कल दोबारा चेक कर ले भाई. No, sir. चले ये कैलकुलेटर इसकी ठीक कर चेक कर लेना. Okay. As the ball falls, its speed v is recorded. Figure 1.2 आपके सामने है. The speed time graph for the falling ball is given. Try what happens to the acceleration between t is equals to 0 and t is equals to 0 points. कहाँ का acceleration बताना है? What happens to the acceleration बताना है शुरू से end तक का. Explain why this happens. 4 नंबर का सवाल है. Explain why भी है. Ball falls, ball गिर रही है. क्या हो रहा है पहले शुरू में यहां तक? Weight is higher more than air resistance.
So F net is present and acceleration is present. अभी आप देखिएगा जब आधे घंटे बाद टेस्ट होगा ना, यू गाइस विल हैव नो क्लू के टेस्ट में क्या हो रहा है, हालांकि टेस्ट ऑलरेडी I प्रिंटेड है। was trying to tell you the answer. नहीं, मैं आपसे नहीं बात कर रहा था, मैं सामने बैठे हुए हैं शगुफे, इनसे बात कर रहा हूँ। Oh. देख लेना अभी। That's such a devilish attitude. No, that's on you. That's on you. इसीलिए कहा this is devilish attitude. Devil says this. इंसान की वजह से हो रहा सब कुछ। Devil says this. I know everything. Devil says this. I am already better. That's such a devilish attitude. Well, and you're still not ready to accept your mistake. That's how people from the pedestal fall. As the ball falls, आपके पास ग्राफ के अंदर पहले आइडेंटिफाई करें क्या क्या हो रहा है। एक बेटा ये शेप है जिसमें स्ट्रेट लाइन अपवर्ड, then there is this curve, and then there is this horizontal part. तीन नंबर होंगे इन तीनों को डिस्ट्रैक्ट करने के। चौथा नंबर किस चीज का होगा? The explanation. The y part. I इन said the तीनों का नंबर भी तब explanation. मिलेगा बेटा, एक मिनट रुको तो सही, मुझे पहले बात मुकम्मल करने दो। We are not playing a guess the answer game. I know. ये 3 नंबर भी तब मिलेंगे अगर आप ग्राफ को रेफर करेंगे, नहीं करेंगे तो नंबर पहला। एट फर्स्ट लिखना भी ठीक है, या इसकी जगह क्या लिखा जा सकता है, फ्रॉम 0 to 0.0035 या वट एवर दिस टाइम स्लॉट इज, जो भी है। एट फर्स्ट द बॉल falls with constant acceleration as there is only one force, its constant weight, acting downwards on it. As speed increases, air resistance increases, F net decreases, acceleration reduces until W is equals to F and F net is equal to 0 and A is equal to 0. क्योंकि F net 0 होगी जब W और F इक्वल हो जाएंगे, जब वेट और फिर रेजिस्टेंस इक्वल हो जाएंगे। जब W और F एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे तो फिर F net जो कि W माइनस F होती है वो भी क्या हो जाएगी, 0, वो भी क्या हो जाएगी। और जब F net 0 हो तो एक्सप्रेशन क्या होता है, लिख सकते हैं, लेकिन उन्होंने पूछा ये कि एक्सप्रेशन को क्या होता है। उन्होंने सवाल पूछा था एक्सप्रेशन को क्या होता है। अगर आप पेंसिल से या पेन से लिख रहे होंगे तो आपके पास मेरे से ज्यादा स्पेस अवेलेबल होगी, मुझे थोड़ा बड़ा बड़ा लिखना पड़ता है। यू कुड ऐड दिस इज बिकॉज ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ No. ऑफ मोशन। By drawing a tangent on figure 1.2,
Determine a value of the acceleration of the ball at 0.01 seconds. Tangent draw करना है. What is a tangent? It is a line on a curved surface which touches only one single point on the curved surface. 0.010 पे, यानी इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना है. कौन से पॉइंट पे? Forgot to send इस you the पॉइंट पे. tangent. I forgot to send you the tangent. अच्छा, But नो I did प्रॉब्लम draw बेटा. it. मैंने ठीक है, कोई बात नहीं. ये है जी पॉइंट. ये वर्कशीट है ना, कोई बात नहीं. समझ लो कैसे करना कैसे ये टेंजेंट ड्रॉ. मैथ्स में हम एक नया तरीका भी सीखेंगे इस काम को करने का बगैर टेंजेंट ड्रॉ किए. बट किसी भी पॉइंट पर सिंस स्पीड और टाइम मिलके एक्सेलरेशन को डिफाइन कर रहे हैं, तो इस पूरे ग्राफ में जहां भी हम निकालेंगे इसका ग्रेडियंट, हर पॉइंट पे, इस पॉइंट पे टेंजेंट निकालें जिस वो उस पॉइंट पे एक्सेलरेशन बता रहा होता है. दैट्स द जॉब ऑफ द टेंजेंट. स्ट्रेट लाइन में चूंकि टेंजेंट ओवरलैप टेंजेंट बन ही नहीं सकता, वो बताते खुद एक स्ट्रेट लाइन होती है. कर्व्ड सरफेस पे हम उसको टेंजेंट कहते हैं. ग्रेडियंट तो इधर भी है, ये ग्रेडियंट शो करना होता है टेंजेंट का. उस पॉइंट पे, उस फिक्स पॉइंट पे क्या चीज है, सो उसका तरीकाकार क्या है बनाने का. हमें उस पॉइंट पे देखना है. सबसे पहले आपने ये करना है, एक्यूरेट टेंजेंट बनाने के लिए सबसे पहले आपने ये करना है, उस पॉइंट पे देखना है कि एग्जैक्टली किस तरफ लाइन की डायरेक्शन है. तो अगर आप गौर करें लाइन की डायरेक्शन, ऐसे एरो बना के, ये है लाइन की डायरेक्शन इस पॉइंट. वेरी गुड. क्योंकि मैं आपके सामने अभी इस एरो को मिटा के, इस एरो हेड को मिटा के, लेट मी पुट अ स्केल इन फ्रंट ऑफ यू. इसको और जूम इन करता हूं. लेट मी पुट अ स्केल इन फ्रंट ऑफ यू. स्केल कहां से आता है? यहां से नहीं आता, यहां से आता है. रूलर. एक बच्चा जब टेंजेंट बनाता है तो वो कहता है सर हैवी टेंजेंट है, और बाय द वे उसके पास उस टाइम पे इतना जूम इन करने की मोहलत नहीं होती. कहता है सर ये भी टेंजेंट. ओ ये क्या कर रहा है? वो कहता है सर ये भी टेंजेंट है. वो कहता है सर टेंजेंट तो शुडंट इट बी लाइक दिस, यहाँ पे नहीं होगा टेंजेंट. आप देख रहे हैं दोनों टेंजेंट्स में फर्क होगा. जब इसका हम ग्रेडियंट निकालेंगे तो वो ग्रेडियंट दोनों का फर्क आएगा. दोनों का ग्रेडियंट. मैं वो फर्क आएगा. एक और कलर ले लेते हैं. कहता है, सर ये ठीक नहीं लग रहा सर, यहाँ बनाना था इसको तो कहीं यहाँ नहीं होना चाहिए सर. और आप देख रहे हैं कि ये जो तीसरे वाला है, इसके नीचे से आप ग्रीन लाइन को उधर से उधर, इसका टेंजेंट डिफरेंट निकलेगा, ऑरेंज का डिफरेंट निकलेगा, यानी देयर कैन बी अ लिटिल बिट ऑफ मार्जिन ऑफ एरर. तो इसका तरीका क्या है आसान कि ये गलती ना हो. सबसे पहले आप इस रूलर को यहां से हटा दें. हट जा भाई. ये क्या हो गया? 1 मिनट, टाइमर क्यों लग गया? क्या दिस रूलर आउट ऑफ द वे. सबसे पहले आप ये काम करें कि अपनी एहतियात से जितनी एहतियात पॉसिबल हो सके, आप उस जगह पर जहां पे आपने वो बनाना है टेंजेंट, ऐसे एरो बनाने की कोशिश करें जैसे मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं. आपने इस पॉइंट से एक लाइन इस तरफ कर दी, एग्जैक्टली मैंने उसका एरो हेड बना दिया. आर वी गुड इनफ है? अब आप रूलर अंकल को वापस बुलाएं और बिल्कुल भूल जाए नीचे वाली लाइन को, और सिर्फ उस एरो हेड को मद्देनजर रखें. और अब आप लाइन ड्रॉ करो. And at 36 degrees. ये आपका जो टेंजेंट है, दिस इज मोर एक्यूरेट देन अदर टाइप्स ऑफ टेंजेंट्स दैट यू वुड ड्रॉ. अब आपको उसने क्या कहा था? टेंजेंट ड्रॉ करके बाय ड्राइंग टेंजेंट, अब आप फाइंड करें यहाँ पर एक्सप्रेशन क्या. अब एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे? वी नीड, क्या चाहिए हमें? डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी. या इसको कह सकते हैं वी, चूंकि ऊपर वाले, क्योंकि ये है क्या, दिस इज y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, जो भी फॉर्मूला आपको याद है. v y एक्सिस पे है ना, तो y की दो, कौन सी दो वैल्यूज लें जिससे जितना ज्यादा आपके पास वैल्यू राउंडेड फिगर आती है, वो वाली दो वैल्यूज ले ले. साल के तौर पे मुझे लगता है y की ये वैल्यू लेनी आसान है, और y की दूसरी वैल्यू कौन सी, ये वाली लेनी वैल्यू आसान होगी. मुझे लगता है ये दो वैल्यूज लेनी चाहिए, तो x की भी यही दो लूंगा. यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ रही है बोला. देखें, अगर 0.04 है, ये 41 42 43 44 45 नहीं, ऐसा नहीं है. ठीक है, 42 44 46 48 और 5. तो इस पॉइंट पर क्या हो रहा है? दिस इज 0.044 है यहाँ पे. राइट, 0.04. आधी समझ आ रही कि नहीं? उड़ रहा ऊपर से. हाँ,
बस पूछोगी तो हाँ हूँ करने से तो नहीं होगा। आपको पता होना चाहिए ना हर छोटे बॉक्स की वैल्यू कितनी है। कैसे पता लगेगी? जो नंबर्स गिवन है उनके दरमियान वाले बॉक्सेस काउंट कर लें। क्या करें उनके दरमियान वाले बॉक्सेस? मिसाल के तौर पे मेरे पास 0.02 है, मेरे पास 0.0, इसमें से यहां तक ये वैल्यू क्या है? 0 है। इन दोनों के दरमियान बॉक्सेस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने हैं? तो इसको 10 पे डिवाइड कर दो। क्या आंसर आता है? आंसर आता है 0.002। इसका मतलब है हर बॉक्स इसको रिप्रेजेंट करता है 0.00। तो फिर अगर यहाँ पे 0.04 है तो यहाँ क्या होगा? 0.042। यहाँ क्या होगा? 0.04। y2 आ गया मेरे पास। दिस इज माई y2। या यूं कह लें ये मेरी v है और u यानी कि इनिशियल वैल्यू वो यहाँ पे है 0.02, 0.022 और 0.024 और 0.026। यहाँ तक प्रॉब्लम? ये मेरी u भी बन सकती है, इनिशियल वेलोसिटी भी इसको कह सकते हैं आप इसको मेरा y1 भी कह सकते हैं। लेट्स पुट देम हियर। ये स्पेस दी हुई है उसने, नीचे स्पेस दी हुई है उसने। क्या क्या वैल्यूज थी जी? 0.4, 0.044 और y2 और 0.026। अब x की भी दो वैल्यूज ले लेते हैं जी। एक्स और वाई की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। कोई भी 2 पॉइंट्स उठा सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। टेंजेंट सही बना होना चाहिए बस, सब में एक ही वैल्यू आएगी, स्ट्रेट लाइन है ना। ये तो बेटा एग्जैक्टली बनता है इनका मिडवे। इनका मिडवे क्या है? 0.015। ये देख लो। और ये वाली वैल्यू जो हमने दूसरी ली थी, ये वाली वैल्यू जो है ये कितनी बनती है? इसको भी चेक करना पड़ेगा। चेक कर लेते हैं भाई। तो ये 0 से लेके ये भी 0.02, एक एक जो है ना 0.002 बॉक्स, एक एक बॉक्स कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है? 0.00। तो 0.002, 0.004, 0.006, 0.0 सॉरी, ये तो मेरा x1 निकला है, ये मेरा x1 निकला है 0.006 और x2 मेरे पास ये है। तो x2 माइनस x1 होता है 0.015 माइनस 0.00। आगे कैलकुलेटर का काम है, आप चेक कर लें। ये क्या बनता है? ऊपर 0.018 ओवर 0.009। आंसर क्या आ गया? 2। हेलो जी, 2 मीटर पर स्क्वेयर सेकेंड। हेलो जी। If anyone has any objection or any confusion, please do ask. आमना बेटे आप क्लास में हो? लगता है आमना क्लास में नहीं है। किंजा आप तो हो ना? सर मैं किंजा क्लास में हूँ लेकिन मैं इतना वो नहीं देख रही क्योंकि मुझे नहीं आता ये। अच्छा अच्छा, तो आप थोड़ा सा देखो ना, इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके लिए प्रायर नॉलेज नहीं चाहिए, वो आपको क्लिक कर देंगी। जैसे टेंजेंट ड्रॉ करना आपको आ चुका होना चाहिए, आपको ये पता लग जाना चाहिए सर इस क्लास स्पीड और में। एक्सेलरेशन आती है। अच्छा अच्छा, टेंजेंट ड्रॉ करना आया आपको? जो मैंने तरीका टेंजेंट ड्रॉ यस सर, करने का बताया ग्रेडियंट वो पता लग वगैरह गया? वो सब आता है। तो बस ठीक है, फिर आप क्यों कह रही हो ये मुझे नहीं आता? ऐसा आपको आता है, यही इसी चीज का तो टॉपिक चल रहा है। यस क्वेश्चन सर। नंबर 5 की तरफ चलते हैं अब। फिगर 2.1 शोज दो आइडेंटिकल ट्रॉलीज हैं। देयर इज अ कंप्रेस्ड स्प्रिंग बिटवीन द ट्रॉलीज P एंड Q है जी, हेल्ड एट रेस्ट है। यहाँ पर ये एट रेस्ट है, इनको रिलैक्स रखा हुआ है। यहाँ पे ये हिल नहीं रही, मूव नहीं कर रही। फिर हमने क्या? ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सर्फेस, मतलब फ्रिक्शन इग्नोर होनी है, रेजिस्टेंस इग्नोर होना है। बलाज यू विद मी राइट? ध्यान है ना? ओके। लोड है जी। देयर इज अ कंप्रेस्ड स्प्रिंग बिटवीन ट्रॉली, उनके दरमियान एक स्प्रिंग है जिसको कंप्रेस किया हुआ है। कंप्रेस का मतलब है अगर मैं छोड़ूंगा तो स्प्रिंग क्या करेगा? दोनों को अवे अवे धक्का देगा, इसको इधर और इसको इधर धक्का देगा। यस आयरीन, यू विद मी सो फार? कहता है ट्रॉलीज आर रिलीज्ड और स्प्रिंग एक्सपैंड करता है, ट्रॉलीज को अपार्ट वो पुश करता है। ट्रॉली क्यू मूव्स टू द राइट, ये इधर को मूव करेगी, वो इस तरफ को मूव कर देगी। द मास ऑफ ईच ट्रॉली इज 1.2 kg। मैं पुट कर देता हूं 1.2 kg ट्रॉली का वेट है, और सॉरी मास है।
और mass of the load on P is 1.5 kg. ये जो लोड है ये 1.5 kg है. The spring has negligible mass. स्प्रिंग को छोड़ें जो उसका mass क्या है. Calculate the speed at which trolley P moves to the left. ट्रॉली P कहता जी ट्रॉली Q जो है वो राइट की तरफ जा रही है. ये उसने ट्रॉली Q की वैल्यू दे दी 0.36 मीटर पर सेकेंड. और उसने ये मैथ किसका दिया है, दोनों का यही है, तो इसका भी 1.2 kg है जी. और ये हमारे पास दूसरा. अब क्या करें जी, इस पे लगेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. क्या लगेगा इस पे? टोटल मोमेंटम विल नेवर चेंज. टोटल मोमेंटम चेंज होगा बेटे? नहीं होगा. टोटल मोमेंटम चेंज नहीं होगा. तो वो कहता है अब आप करें स्पीड बताएं जिस पे ट्रॉली P लेफ्ट की तरफ मूव करें. अभी उसने आपको बताई ट्रॉली Q वाले की राइट की तरफ को. इसका क्या मतलब है? दिस शोज इस वक्त इनके ऊपर मोमेंटम क्या है. अगर इस होल बॉडी को लें तो इसका ओवरऑल इस वक्त मोमेंटम क्या है? व्हाट इज द टोटल मोमेंटम ऑफ द होल बॉडी? मोमेंटम का फॉर्मूला क्या बाय द वे? mv. इस पूरे को इकट्ठे को मैस नहीं कर लो, पूरी बात कर लो. हो गया श्योर? यार मैं देखा आपने मेरा मैजिक चेक किया आपने? तैसी मैं किसी से पूछता हूँ काम हो गया उसका काम खत्म हो जाता है. आपने वो गाना सुना बचपन में अखियों से गोली मारे? वो मेरे पे नहीं बना, वैसे ही कह रहा हूँ. मैंने इसीलिए कहा, मैंने गाया तो लड़के ने है कि नहीं. ठीक है जी भाई, करें आगे डिस्कस. सर इजाजत है? सब बोर्ड पे देखे ना सर फिर जरा. सर ये पूरे मैच को अगर मैच कंसीडर किया जाए तो ये अभी एट रेस्ट है कि नहीं? यस और नो? इस वक्त उन्होंने कहा था ये एट रेस्ट है कि नहीं? जी सर उन्होंने कहा था एट रेस्ट है. तो इस वक्त इसकी वेलोसिटी कितनी है सर? तो इसका मोमेंटम कितना हुआ सर इस वक्त? सफर जितना मर्जी मैच हो, मोमेंटम क्या है? अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि जितना मोमेंटम इसका इस वक्त है बाद में भी स्प्रिंग छोड़ेंगे इतना ही रहेगा. स्प्रिंग छोड़ेंगे तब भी मोमेंटम इतना ही रहेगा. कैसे भाई? जितनी ट्रॉली Q जिस मोमेंटम के साथ ट्रॉली Q इधर को जाएगी एग्जैक्टली सेम मोमेंटम से ट्रॉली P इधर को जाएगी. तो अगर इसकी वैल्यू मोमेंटम की +5 निकलेगी तो उसकी वैल्यू मोमेंटम की क्या निकलेगी? माइनस. तो +5 और -5 इक्वल टू टोटल मोमेंटम हमेशा क्या रहेगा? आईरीन डिड यू गेट दैट? क्या आप राइट वाले का मोमेंटम Q वाले का मोमेंटम हम निकाल सकते हैं? यस निकाल सकते हैं. व्हाट इज Q का मोमेंटम? Q वाला इधर लिख लेते हैं, नहीं राइट लेफ्ट चेंज करते हैं जी. हम Q वाला इधर कर लेते हैं, P वाला इधर कर लेते हैं. Q वाला मोमेंटम क्या है? वी नीड टू फाइंड मोमेंटम ऑफ Q. मैथ चाहिए और वेलोसिटी चाहिए उसकी. जी मैथ है हमारे पास Q वाले का. यस जी उन्होंने कहा था हर किसी का 1.2 होता है. वेलोसिटी है जी जनाब 0.36, उसी की तो वेलोसिटी है. तो सर क्या मोमेंटम निकला भला उसका? 0.43 मोमेंटम उसका निकला है. मोमेंटम का सर यूनिट क्या होता है सर? kg/m(s)-1 या kg/m/s. लो जी ये किसका मोमेंटम निकला है? सर आप मुझे कह दिया करें, मैं 2 मिनट चुप कर जाया करूँ. आप बीच में जो आप डिस्टर्ब होते हैं ना मेरे लेक्चर से सर. सर होते हैं मुझे लगता है. अभी सर 15 मिनट बाद टेस्ट है, आपको पता है ना. हाँ. तो ये किसका मोमेंटम निकला है? Q का. अब क्या P का भी मोमेंटम सेम निकलना है कि नहीं? क्योंकि सेम वैल्यू निकलेगी तभी तो जीरो होगा ना. डायरेक्शन डिफरेंट है इसलिए प्लस माइनस है. P का भी मोमेंटम एग्जैक्ट यही निकलना है. उसका मोमेंटम कैसे निकलना है भाई? वो भी तो इज इक्वल टू mv होगा. उधर मैथ कितना है भाई? 1.2 + 1.5. तो मैथ है 2 पॉइंट मल्टीप्लाई बाय v है हमारे पास नहीं. लेकिन मोमेंटम कितना उधर हमारे पास भाई? मोमेंटम हमारे पास है 0.43. आर वी गुड सो फार? डिड यू अंडरस्टैंड दिस और नॉट? हाँ जी बोलो. नहीं होगा. क्या सॉरी दोबारा बोलो. 0. -0.43 नहीं होगा. बिल्कुल माइनस हो सकता है, माइनस ले सकते हैं, लेकिन हमें उसने पाबंद नहीं ना किया. तो आप माइनस या लेफ्ट जो भी लेंगे कुछ से फर्क हमारे पास. मुझे उन्होंने सिर्फ मैग्नीट्यूड मांगा है ना स्पीड का, इसलिए उससे फर्क नंबर पे आंसर पे नहीं पड़ेगा. मैंने इसलिए नहीं डाला
लेकिन यू कुड हैव पुट माइनस पुट कर सकते थे आप, दैट्स अ बेटर अप्रोच ऑफ कोर्स। अब जनाब क्या v की वैल्यू निकल सकती है दोनों साइडों को 2.7 पे डिवाइड करके? आप में से बहुत सारे शहजादे पता क्या करते हैं यहाँ पे, कितने अच्छे अजीम लोग हैं आप, आपका मैथ भी कितना यूनिक है। आप इसके बाद ये करते हैं जनाब, v इज इक्वल टू 2.7 ओवर 0.43। सुभान अल्लाह। प्लीज अपने लिए एक हाथ से ताली बजा लें और दूसरे हाथ की जगह अपना चेहरा इस्तेमाल कर लें, अपना अपना करें भाई। इसीलिए मैं कह रहा हूं बजाय इस तरह करने के, आप सर इस तरह कर लिया करें, आपसे गलती का चांस कम हुआ करे। 2.7 दोनों तरफ डिवाइड कर लिया करें। सर ये इससे कट जाएगा। कैलकुलेटर चला के बताएंगे जी क्या वेलोसिटी निकलती, क्या स्पीड निकलती है? सर प्लीज चेक करें 1 पॉइंट कितना निकल रहा है। 1.6 निकल रहा है, 7 है, कितना है? चलिए 0 पॉइंट नहीं हो सकता, गलत किया आपने। ओ हाँ नहीं 0 पॉइंट ही होगा, सॉरी 0.972. 0.159 No, 972. 902 है, 972. 972 है जी। हेलो जी 972 कर लें। No, 7 नहीं आ रहा। it's not. It's all 1592. मेरा 1 मिनट ठहर, जो 1 मिनट है बेटा, आपने अभी किया, आप जरा अपना आंसर बता दो। 0.1592 बस, क्या आगे तक चलता है? ओके अब मेरा आप अपना आंसर बता दो जी, आपका क्या आंसर? When I multiplied it, never mind. हाँ आपने गलत किया ना, तो फिर आपको गलत ही आंसर निकलेगा। अपनी गलती सुना करो, समझा करो यार, क्या करती है। काइनेटिक एनर्जी निकालनी है जी ट्रॉली क्यू की, जब वो इस स्पीड पे मूव करता है। काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला भाई साहब? 1/2 mv। जनाब 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे मैथ से, मैथ कितना है? 1.2 है। जनाब वेलोसिटी कितनी थी? 0.36, उसका लेंगे स्क्वायर। कैलकुलेटर का इस्तेमाल करने की जरूरत है तो कर लें, नहीं तो 0.6 जी 0 पॉइंट, फिर एक और 7 है। हेलो जी, जूल्स में ये एनर्जी लिखनी है। स्टेट द एनर्जी ट्रांसफर दैट टेक्स प्लेस एज द स्प्रिंग एक्सपैंड्स। जैसे स्प्रिंग एक्सपैंड करता है, एनर्जी ट्रांसफर क्या होता है? इलास्टिक पोटेंशियल Elastic potential to kinetic energy. एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। वो अपना शेरदिल है अपने पास एक, शेर खुशदिल का नहीं कहा मैंने, शेरदिल का कहा, उमर शयान का। तो सर ये तो आपने पढ़ाया ही नहीं लास्ट टाइम। सर ठीक है सर, मान लिया, और हुक्म करो। शुक्र है ये वर्कशीट थी, अब पढ़ा दिया, अब आ जाएगा टेस्ट में। आगे चलो कैसा फिर, हालांकि मैंने ये भी पढ़ाया है। कब पढ़ाया बताऊं अब? जब मक, जब मैकेनिकल नहीं मैकेनिकल एनर्जी पढ़ाया था ना, तब काफी एनर्जीज के नाम बताए थे और साथ कहा था, लेकिन इस चैप्टर में सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी पढ़े। पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाते वक्त बताया था, ग्रेविटी की वजह से वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, लास्टिक की वजह से होता। ये आप जैसे आप इग्नोर हो रहे हैं ना आज मेरी बातों से, साइड नोट ज्यादा अहम होता है समटाइम्स नोट्स। A lorry has mass of 400 किलोग्राम traveling at a speed of this। mass के लिए m लिखें, स्पीड के लिए v लिखें, और देखना दिया they don't realize right now। अब कार एक दूसरी गाड़ी है, सो इसको m1 कर देते हैं, इसको m2 कर देते हैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लॉरी। दोनों की के ही सेम है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द कार? दोनों की के ही अगर सेम है तो 1/2 mv² इज इक्वल टू 1/2 mv²। तो जनाब जरा चेक करते हैं, 1/2 से काटा जा सकता है? यस, दोनों साइडों पे है। मैथ लेकिन नहीं काटा जा सकता। एक तरफ 4000 है, जरब 4 का स्क्वायर, दूसरी तरफ 1000 है, जरब पता नहीं क्या। सो दिस इज मल्टीप्लाई को कहते हैं। 16 4 आर 64,000 इक्वल्स टू 1000 v। सो v इज इक्वल्स टू 64। तो आई नहीं पीछे, कुछ गलती की मैंने कुछ गलत किया है क्या? मुझे समझ आ गई, यहाँ पे स्क्वायर डालना भूल गया। सो 1000 से डिवाइड होगा तो v² विल बिकम इक्वल टू v² विल बी इक्वल टू 64 और v इज इक्वल टू 8। ये जनाब सम प्रोसेसेस आर मूव्ड। एफिशिएंसी कैसे होती है जी? टोटल एनर्जी आउटपुट ओवर टोटल एनर्जी इनपुट। नो वेस्टेड, नो यूजफुल एनर्जी और
जी जनाब, बॉक्स है जी, ईच वे 100 न्यूटन, 3 बॉक्स है। ये जनाब उसका वेट आ गया W। मैन है जी, सारों को उठाता है टुगेदर फ्रॉम द ग्राउंड ऑन अ शेल्फ, दैट इज, ये जनाब हमारे पास डिस्टेंस आ गया। मैन टेक्स 2 सेकेंड्स, टाइम आ गया। हमें क्या निकालना है? वर्क, नहीं पावर निकालनी। पावर इज इक्वल टू वर्क डन ओवर टाइम। वर्क डन क्या होता है जनाब? F इंटू डी, नहीं डॉट वाला D इंटू होता है ओवर टाइम। पावर इज इक्वल टू फोर्स कितनी लगेगी जी? 3 बॉक्स हैं 100 न्यूटन के, 300 न्यूटन। जरा कितना डिस्टेंस है जी? 1.5। टाइम कितना है जी? 2। तो ये 225 वाट हमारे पास आंसर आ जाएगा। 3 नहीं थे बॉक्स, इसीलिए मैंने आपको कहा अंडरलाइन करके साथ साथ लिखा करें इन चीजों को। क्वेश्चन नंबर 9, कार है जी, ये उसका मैस है, मोमेंटम उसका दिया हुआ है जी। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? वाह, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का क्या फर्क है भाई? मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mv, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 mv। को मसला, तो आपको क्या करना है? आपको ये करना है कि मोमेंटम को पहले हाफ करना है, फिर उसकी वेलोसिटी का निकालना है स्क्वायर। क्या निकालना है? गिवन क्या है? हमें मोमेंटम गिवन है। क्या मैं इधर ये लिख सकता हूं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय वी मल्टीप्लाई बाय मोमेंटम? नहीं समझ आई? समझे जरा यार, थोड़ी देर लॉलीपॉप से खेलना छोड़ दो और इधर तवज्जो दो। छोटे बच्चे और निक्के निक्के से जो आप इस उम्र में भी लॉलीपॉप ही खाते रहते हो टाइम। तवज्जो काम पे बस। प्यारे बेटे ये देखो, काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है? 1/2 मल्टीप्लाई बाय मास मल्टीप्लाई बाय वी का स्क्वायर। यस और नो? कैन आई राइट इट लाइक दिस? दिस इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय m मल्टीप्लाई बाय v मल्टीप्लाई बाय v। प्लीज तवज्जो काम। कैन आई राइट इट लाइक दिस? mv किसके इक्वल होता है? व्हाट इज mv? मोमेंटम। तो कैन आई से 1/2 मल्टीप्लाई मोमेंटम मल्टीप्लाई v? अगर मुझे मोमेंटम पता हो, अगर मुझे मोमेंटम और मैथ भी मुझे पता हो, और मैथ भी मुझे, तो क्या मैं वेलोसिटी निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता? तो क्या चीज मुझे रोक रही? व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी, तो पहले तो बेटे इस मोमेंटम से मैं वेलोसिटी निकाल लूंगा। मोमेंटम इज इक्वल टू 1000, सॉरी, मोमेंटम इज इक्वल टू mv। मोमेंटम कितना है? 12,000 इज इक्वल टू 1,000 मल्टीप्लाई बाय v। तो v की वैल्यू क्या है मेरे पास आई? अब ये v की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ कि नहीं काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए? यस और नो? तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय मोमेंटम कितना था? 12,000, राइट? मल्टीप्लाई बाय v की वैल्यू क्या निकली थी? 12। ये लें जी, 672 किलो जूल, 72,000 आंसर आएगा। तो दैट इज 72 किलो जूल। वी गुड और नॉट? अब आप जरा गौर करें, प्लीज एक बात पे गौर करें। मैंने v मल्टीप्लाई बाय v कर दिया, मैं यही अब यही बात बताने लगा। प्लीज एक बात पे गौर करें, क्या हमने टॉपिक में पढ़ा है मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का आपस में क्या रिलेशनशिप है? हमारे सिलेबस में भी नहीं लिखा हुआ कि ये पढ़ना है। हमारे सिलेबस में कहीं मेंशनड नहीं है यार, आपको ध्यान, हमारे सिलेबस में कहीं मेंशनड नहीं है कि आपने मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशनशिप पढ़ना है। पेपर में सवाल आ गया, पैनिक कर जाऊं, छोड़ दूं? मैं क्या करूंगा? आई विल राइट डाउन, मुझे पता क्या है, एंड आई विल स्टार्ट डाइसेक्टिंग इट। इसमें से क्या क्या हो सकता है। मैंने आपके सामने, मैंने सॉल्व, आपको मार्क्स स्कीम नहीं दे रहा, आपके सामने सॉल्व करके दिखा रहा हूँ यार। क्या करूं? मुझे पता है मोमेंटम का ये फॉर्मूला होता है, मुझे पता है काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला होता है। मुझे कोई सिमिलरिटी नजर आ रही है कि नहीं नजर आ रही दोनों में? कैन आई सी के दोनों में कोई सिमिलरिटी है? मैंने देखा काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला के अंदर मोमेंटम का फॉर्मूला छुपा हुआ है, मैंने उसको अलग कर दिया। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर है, उसको मैं एम वी वी लिख सकता हूँ। क्या मैं एम वी की जगह, मैंने नहीं बताया था, क्लास में से किसी ने बताया था सर एम वी तो मोमेंटम होता है, मैंने उसकी जगह मोमेंटम लिख लिया, एक न्यू फॉर्मूला आ गया मेरे पास। अब मैं देख रहा हूँ क्वेश्चन में गिवन क्या, मुझे मोमेंटम गिवन है।
मुझे चाहिए काइनेटिक एनर्जी निकालने की 1/2 चाहिए, वो तो मुझे पता है 1/2 क्या होता है। मुझे वी चाहिए। अब वी है मेरे पास? नहीं भाई, वी नहीं दिया हुआ। क्या दिया हुआ? मैथ दिया हुआ है। क्या मोमेंटम के फॉर्मूले में ये पुट करके वी निकाला जा सकता है? निकाला जा सकता है, निकाल के देखें। बट दिस इज नॉट द काइंड ऑफ क्वेश्चन जिसको आप सीक्वेंस में जैसे ही आई सॉल्व करें। दिस इज द काइंड ऑफ क्वेश्चन जिसको आप सीक्वेंस में आई छोड़ दें, एंड पे करें। पहले ही गो में सिर्फ वो क्वेश्चंस करने हैं जिनको आपने डायरेक्ट बगैर कोई स्टेप परफॉर्म किए सॉल्व कर सकते हैं, जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 था। ये है पहली गो में करने वाले क्वेश्चन। मैं ऐसे टेस्ट कभी भी नहीं बनाऊंगा जिसमें सीक्वेंस ऐसा बना हो कि पहले इजी क्वेश्चन, फिर मोर डिफिकल्ट, फिर मोर डिफिकल्ट। क्यों? क्योंकि पेपर में ये सीक्वेंस नहीं होता। तो आपको ये अक्ल इस्तेमाल करनी है। पहली गो में सिर्फ ये सवाल सॉल्व करना है। फॉर्मूला ही था, आपको आता था, खत्म किया। दूसरी गो में सवाल सॉल्व करने हैं ये वाले, जिसमें आपको सीधा सीधा फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करके सॉल्व हो जाना। और फिर तीसरी गो में सॉल्व करने हैं वो वाले जिसमें एक वैल्यू जो निकालनी है, वो निकालने के लिए पहले कोई और वैल्यू निकालनी होती है। आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट करने वाली चीजें ही नहीं है। डिड यू अंडरस्टैंड दैट? तो आप पेपर 3 दफा पढ़ते हैं अपना। मैं आपको देखें, अब मैंने कितनी सहूलत कर दी। ये भी नहीं कह रहा सबसे इजी पहले करो, फिर उससे मुश्किल करो, फिर उससे मैंने सीधा सीधा आपको टिप दे दी, सीधा सीधा ट्रिक बता दिया पेपर अच्छा सॉल्व करने का। पहली गो में वो क्वेश्चंस करने हैं जिसमें यू डोंट हैव टू थिंक एट ऑल। फॉर्मूला पूछा आपसे या डेफिनेशन पूछी है, दैट्स इट। दूसरी अटेम्प्ट में वो करना है जिसमें आपका वो फॉर्मूला यूज होना है और उसकी वैल्यूज गिवन है, आपको सिर्फ कैलकुलेटर में पुट इन करनी है वैल्यूज। और तीसरी गो में वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जिसमें वैल्यूज गिवन जो है वो उस चीज की नहीं है जो फाइंड करनी है। तो जो चीज फाइंड करनी है उसके लिए कुछ और निकालना है पहले। ऐसे आपका पेपर आसान हो जाएगा। क्यों आसान हो जाएगा? क्योंकि पहली गो में करने पे आपने 40 सवाल होंगे टोटल, 5-6 सवाल सॉल्व कर चुके होंगे आप। आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ये तुम जाते हैं 5-6 नंबर तो पक्के हो गए। दूसरी गो में आप 10 से 15 सवाल और सॉल्व कर चुके होंगे। तो जब आपने 20 सवाल बगैर सोचे समझे, बगैर परेशान हुए सॉल्व कर लिए, और टाइम भी अभी आधा भी नहीं हुआ, कॉन्फिडेंस किधर जाएगा? आसमान पे। फिर बंदा सोचेगा और काम करेगा। पार्ट ए कहता जी आपके पास फिगर है, वो शो करती है स्कीयर है, पार्ट ऑफ वो ऐसे झुक रहा है। देखें जी, मैस है स्कीयर का इंक्लूडिंग इक्विपमेंट 75 kg है। ये है कैलकुलेट द डिक्रीज इन द ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्कीयर। डिक्रीज फाइंड करना है पोटेंशियल एनर्जी का। क्या हुआ जी? मैस आ गया आपके पास, ये वर्टिकल चेंज इन हाइट आ गई आपके पास। ये फॉर्मूला क्या होता है? mgh। यही होता है ना? जितनी एनर्जी उसने लूज की है वो यहीं से गेन होगी ना आपके पास, जीपी। सो जनाब, मैथ है हमारे पास था कितना? 75 मल्टीप्लाई बाय जी की वैल्यू है 9.8 मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी है 880। डालें जी कैलकुलेटर में, वैल्यू बताएंगे आंसर। अगर ये लिखेंगे तो जूल्स लिखेंगे आंसर, और अगर यहां डेसिमल डालेंगे तो किलो जूल्स लिखेंगे आंसर। योर चॉइस। पार्ट बी, the work done against the resistive force, the skier starts from rest, total distance traveled by the skier Wait a in the minute, sir. descent। Mass क्या था? जी। Okay. The total distance traveled by the skier during the descent is, ये उसने distance cover किया। This is D। Average resistive force is this। ये आपके पास force आ गई। Work done against the resistive force, work done against resistive force कैसे निकालते हैं? उसको नेगेटिव वर्क भी कहते हैं बाय द वे। वही फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस कवर्ड। फोर्स कितनी है? 220। डिस्टेंस कितना है? 2800। क्या आंसर निकलता है हमारे पास? 616 किलो जूल लिख लें फिर से। यहाँ 616 था, 000 जूल्स लिख लें आपकी मर्जी। The kinetic energy of the skier as he crosses the finishing line at the end of the race। क्या काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए उसकी जैसे ही वो क्रॉस कर रहा है फिनिश लाइन? हाँ जी, कैसे निकलती है? याद है ना, जो उसने एनर्जी टोटल लूज की है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी लूज की है? ये लूज की है। पोटेंशियल एनर्जी कितनी लूज की है? ये याद करें, वर्कशीट में हम जब कर रहे थे एमसीक्यूज में सवाल आया था ये। काइनेटिक एनर्जी जो उसकी फ्रिक्शन की वजह से उसने नेगेटिव वर्क हुआ, वो कितना हुआ? ये हुआ। तो फिर काइनेटिक एनर्जी बाकी कितनी बची है उसकी?
एमसीक्यू में जब हम कर रहे थे इससे रिवर्स क्वेश्चन था। क्या क्या क्वेश्चन था? जीपी दी हुई थी आपको और उसमें से केई निकालनी थी। क्या निकालने के लिए? ये जो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन था ये निकालने के लिए। अब क्या किया उसने? ये दे दिया है, ये दे दिया है, केई निकालनी है। क्या करूं? केई उधर चला जाएगा पुत्र, वो इधर आ जाएगा। इसमें से ये माइनस करना। 646.8 माइनस 616, क्या आंसर आता है पुत्र? 30.8। यही आंसर है, 30.8 किलो जूल्स। देखें जितनी उसने पोटेंशियल एनर्जी लूज की है, सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जानी चाहिए ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही कह रहा है। लेकिन कुछ एनर्जी उसमें से यूज कर ली है फ्रिक्शन ने हीट क्रिएट करने के लिए। मे बी कुछ ना कुछ एनर्जी किसी ने यूज कर ली है। किसने यूज कर ली है? ये फ्रिक्शन ने, जो नेगेटिव वर्क डन हुआ। तो जो बाकी बची है वो कहाँ है? ये। कोई प्रॉब्लम? यू क्लियर सो फार? यस और नो? क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट Yeah. क्वेश्चन है, इसके बाद हम अपना टेस्ट की तरफ आ जाएंगे। द इंजन ऑफ एन अनपावर्ड टॉय ट्रेन इज रोलिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑन अ लेवल ट्रैक। मैं बता रहा हूँ 35 मिनट्स होने वाले हैं। 35 पर टेस्ट दे रहा हूँ। 25 मिनट का टेस्ट है मैथ्स का और 25 से 30 मिनट का टेस्ट है फिजिक्स का। अगर किसी एक घर से किसी की आने की प्रॉब्लम है, अभी फोन करा दे जाके ऑफिस से। टेस्ट दिए बगैर आज जाना नहीं किसी ने। ठीक है जी? आपको टाइम बाद टेस्ट मिल रहे हैं, टेस्ट उसके मुताबिक सॉल्व करें। द इंजन ऑफ एन अनपावर्ड टॉय ट्रेन इज रोलिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑन अ लेवल ट्रैक। द इंजन collides with a stationary rock truck and joins with it. Calculate the momentum of the toy engine before the collision. Before the collision, the toy car engine is traveling. ये स्पीड दी हुई है आपके पास बिफोर, और ये मैथ दिया हुआ है। सीधा सीधा सा क्वेश्चन है। 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.32, आंसर आएगा 0.16 kgm/s। mass ऑफ द ट्रक इतना है पुत्र, 0.30 है। यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन मोमेंट कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द जॉइंट इंजन। अब जब ज्वाइन हो गया है तो क्या है? तो पुत्र मोमेंटम टोटल पहले ये निकला है ना। मोमेंटम अब भी टोटल कितना निकलेगा? यही। मोमेंटम अब भी टोटल कितना निकलेगा? वही। एम चेंज हो गया है। क्या चेंज हो गया है? मोमेंटम कितना था? 0.16। मैथ चेंज हो गया है। पहले कितना मैथ था? 0.5 kg। अब कितना हो गया है? इसको ऐड करके 0.8। 0. अब v फाइंड करनी है आपने, तो 0.8 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 0.02 मीटर पर सेकेंड आंसर आ जाएगा। 2 है? नहीं यार, 0.2 होगा। 2 कैसे कर लिया आप? I think. 0.2 होता है? हैं? नहीं, Wait a minute, I'm gonna check with the Yes. calculator. 0.16 ओवर 0.8। डेसिमल उड़ाएं, मल्टीप्लाई 10 आ जाता है। डेसिमल It's उड़ाएं, zero. मल्टीप्लाई 100 आ It's जाता 0.2. है। 8 2 आर 16 होता है। एक 0 0 से कट जाता है, तो 0.2 ही होता है जी। जी सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। हो सकता है मेरी गलती हो जाती है मेरे से। हाँ, Not everyone is perfect. पता नहीं लगा क्या कहा आपने। तो कर सकते हैं, तब भी यही होगा आंसर। यही होगा बेटा। M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। M1 कितना था और U1 कितना था, ये पहले हम ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं। 0.16 लिख लो इसकी जगह। U0 है, वो एट रेस्ट था, स्टेशनरी था ट्रक, तो ये 0 हो गई। इक्वल्स टू, मैंने भी इक्वल्स टू के साइड पे 0.16 ही लिखा। क्या V1 और V2 दोनों सेम नहीं है? अब क्या V1 और V2 दोनों सेम नहीं है? अगर ये सेम है, मैं कॉमन निकाल सकता हूँ। M इधर कर लूं, सॉरी, मैं V बाहर निकाल लूं और M1 और M2 को ऐड कर लूं। क्या 0.16 इक्वल्स टू V की जो भी वैल्यू है मल्टीप्लाई बाय 0.8 नहीं आता? हाँ जी, तो फिर भी वही आंसर आता। गुड, समझ आ गई?
सर आपको Are we मेरी clear? आवाज आ रही है? अब आ रही है, बोले। थर्ड एमसीक्यू एक दफा खोलेंगे? जी मैं खोलता हूँ अभी। ये तरीके से भी करना हो तब भी आंसर यही आता। थर्ड एमसीक्यू एक दफा खोल लिया हमने। जी बोलो। इसमें ना आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को और काइनेटिक एनर्जी को सेम क्यों रखा है, ये मुझे समझ नहीं आई थी। जी ये मैंने ना बताया था कि जब भी कोई चीज यहाँ से यहाँ पर गिर रही है, ये टॉप है और ये फ्लोर है, यहाँ पर बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी इस पूरे रास्ते में मैक्सिमम है। ये जैसे जैसे इसकी नीचे गिरेगी, ना उसका मैस कम हो रहा है ना उसका जी कम हो रहा है, एच में कमी आ रही है, तो उसमें से पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है। वो जा कहाँ रही है, यहाँ पे ये एट रेस्ट है, तो इसकी हाफ एम वी स्क्वेयर में वी की वैल्यू 0 है, इसलिए यहाँ पे उसकी के ई इक्वल टू 0 है। नीचे लेकिन जैसे जैसे आती जा रही है तो वी की वैल्यू में इजाफा होता जा रहा है। तो इसका मतलब है जितनी वो पोटेंशियल एनर्जी लूज करती जाती है, उतनी काइनेटिक एनर्जी वो गेन करती जाती है। जब वो बिल्कुल जीरो पे आज यहाँ पर आ जाती है तो उसकी एच की वैल्यू 0 हो जाती है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो चुकी होती है। लेकिन यही वो पॉइंट है जहां उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है, इसलिए वो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी जो थी वो कन्वर्ट हो गई, किसमें चली गई, काइनेटिक एनर्जी में। हमारे क्वेश्चन में उसने कहा ये है कि वो जब ड्रॉप किया था तो उसकी हाइट इतनी हाइट क्या है, ये मैस है, जी की वैल्यू हमें पता है। उसने कहा एट द ग्राउंड हिट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड उसकी क्या स्पीड है। मुझे पता है सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी अगर वहां पे एयर रेजिस्टेंस नहीं है। अगर रेजिस्टेंस है तो थोड़ी सी हीट नो जनरेट होती है, बट आई होप आप समझ गई कि सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी टॉप की, नीचे काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम होती है। यस सर। ठीक, चलें जी टेस्ट स्टार्ट करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी मैं ऑनलाइन क्लास खत्म कर रहा हूँ। टेक केयर।